presentation today. First of all, on behalf of Kumarji, I would like to welcome all the viewers from Pan India and myself, Ankush Chaudhary. I'm in this industry last 15 years and looking after the wealth management division in Kumarji, and how we can promote advisory funds, advisory products, what are the importance we will discuss today. So most of the viewers are from Gujarat, so let's welcome them. Gujarati kem cho? And few viewers are from Kolkata, so I am basically from Kolkata, so like to welcome them also. Kemon achen, कोलकाता में बोलते हैं केमोन आचेन. तो जितने कलकत्ता के व्यूअर्स हैं, I hope that we all are staying at home, keeping our priorities, our health right now. So staying at home, looking after the family, health, and looking after the society also. So we'll start this presentation with a brief introduction of about Kumarji Group. What I would like to say, see, Kumarji is not only a 60-year-old company, it's a 60-year-old company, but I personally have seen that it's a very diversified group. Diversified in the sense, it deals with all the assets class. जैसे आप जितने भी houses देखोगे, बड़े houses देखोगे, you will feel only that you are getting only equity advisory. But in this house, having a 60 years old organization, we deal in all types of services, all types of assets class. जैसे financial services भी है हमारे पास. We have wealth management group. We are dealing with a real estate wing, which is a very big team we have right now. Commodities, I think most of the people know that Kumarji is known for commodity business. We are having own warehouses. We are exporting commodities in all over the world. We have warehousing solutions. So I can say this is a group where you will find all the assets classes, not only equity, you will find all the assets classes. So in financials, जो हम लोग broking wealth management की बात करते हैं, उसमें we have the credentials that we have around more than 75,000 clients right now. 1,500 corporates client हैं, जिनमें कुछ government institutions भी हैं जो हमारे साथ associated हैं. We have 12 institutional clients, more than 250 franchisees partners pan India, and we are expanding our zone in another new regions, that is Eastern region and northern region also. We have been affiliated by national, international levels exchanges. We have a huge team of chartered accountant professionals. We are best in industries research in terms of equities, commodities. We have done more than 1,000 webinars, training, awareness program कि जितने भी आज इन्वेस्टर्स हैं, जो भी लोग इस मार्केट से जुड़े हुए हैं, उनको कैसे इक्विटी अवेयरनेस क्रिएट किया जाए. तो वी हैव कंडक्टेड लॉट्स ऑफ ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स. आज का जो टॉपिक रखा गया है, उसमें बेसिकली इंपॉर्टेंस ऑफ एडवाइजरी प्रोडक्ट्स एंड एसेट्स एलोकेशन है. इसमें मैं कोशिश करूंगा कि बहुत सिंपल पिक्चर्स के थ्रू, बहुत सिंपल लैंग्वेज के थ्रू आप लोगों को, जितने भी व्यूअर्स हैं, उनको कम से कम ये मैसेज हमारा चल जाए कि एडवाइजर्स कौन हैं, एडवाइजरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं और इनका इंपॉर्टेंस क्या है आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पे. तो ये तीन टॉपिक बेसिकली डिस्कशंस का रहेगा. हु आर द एडवाइजर्स, व्हाट आर एडवाइजरी प्रोडक्ट्स दैट वी आर डीलिंग राइट नाउ इन कुमरजी बास्केट, एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एडवाइजरी प्रोडक्ट्स एंड एसेट्स एलोकेशन. सो मैंने काफी सिंपल लैंग्वेज यूज की है, क्योंकि एक तो हम लोग वेबिनार कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हो इंटरेक्टिव नहीं हो पाता है ये. तो मैंने कुछ इमेजेस के थ्रू, जो कि आप लोगों को वहां देखने में आसानी हो, उसको यूज करते हुए एक सिंपल लैंग्वेज के थ्रू कोशिश की है कि ये प्रेजेंटेशन करेक्ट किया जाए. सबसे पहले जैसे अपनी जो इंडस्ट्रीज है, उसमें आज के दिन में एडवाइजर्स कौन कौन है. तो आप देखोगे कि एडवाइजर्स में लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं. हम लोग इनको क्यों एडवाइजर्स मानते हैं? इनमें कुछ तो है जो कि हम लोग इनको एडवाइजर्स मानते हैं. हम लोग इनके पास जाते हैं, हमारी जो भी प्रॉब्लम्स होती है हम लोग इनसे डिस्कस करते हैं,
हम लोग इनको बताते हैं कि हमें ये सर्विस चाहिए, ये सर्विस चाहिए, फिर उनके जो एक्सपीरियंस आता है उसके बेसिस पे ये हमें एडवाइस करते हैं। तो ब्रॉडली काफी काफी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवाइजर्स रहते हैं। मैंने जस्ट तीन एडवाइजर्स लिए हैं जो कि एक्सेप्टेड हैं, जिनका जिसमें सबसे पहले डॉक्टर्स को एडवाइजर माना जाता है, लॉयर्स को, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को। अब इनकी स्पेशलिटी क्या है? इनकी स्पेशलिटी है कि ये क्वालिफाइड होते हैं, इनके पास डिग्री रहती है, इन्होंने जो डिग्री हासिल की है, जो पढ़ाई की है, उसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। ये अपने सब्जेक्ट में मास्टर होते हैं, इनके पास नॉलेज होता है। आज कोई भी आदमी डॉक्टर नहीं बन सकता, आज कोई भी आदमी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकता, कोई भी लॉयर नहीं बन सकता है। तो ये बहुत जरूरी है कि ये समझना कि व्हाई दे आर एडवाइजर्स। दे आर एडवाइजर्स बिकॉज दे आर क्वालिफाइड, दे आर मास्टर्स इन देयर नॉलेज, इन देयर सब्जेक्ट। उनके पास ह्यूज एक्सपीरियंस रहता है, उन्होंने समय दिया है, वो अपने आप को लगातार अपडेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक डॉक्टर ने पढ़ाई कर ली तो वो आगे जाके उसी डॉक्टरी में क्या नई चीज आ रही है उसको अपडेट करते हैं, लगातार उसमें उनका अपडेशन चलता रहता है। वो एक स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर काम करते हैं, और ये सारी चीज जो वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो एडवाइस प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए वो फी चार्ज करते हैं। और जब भी हम लोग किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या लॉयर के पास जाते हैं या जितने भी और एडवाइजर्स के पास जाते हैं, उस वक्त जब हम फी देते हैं तो हम निगोशिएट नहीं करते हैं। कभी मैंने नहीं सुना कि कभी मैं डॉक्टर के पास गया और आपकी फीस अगर 500 रुपए है तो मैं 400 दूंगा। तो जस्ट दिस इज जस्ट अ डिस्कशन कि जहां हम लोग ये मानने की इंडस्ट्री में जो डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, उनके पास क्वालिफिकेशन है, उन्होंने पढ़ाई की है, मेहनत की है, उन्होंने अपना समय दिया है, उन्होंने अपना रिसोर्स दिया है, वो एक कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर काम करते हैं और तब जाके हमें एडवाइस करते हैं। इसी तरह हमारी इंडस्ट्री में भी फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं। इसी तरह हमारी जो ब्रोकिंग इंडस्ट्री है, जो वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री है, इसमें भी एक्सपर्ट्स होते हैं, रिसर्च हेड्स होते हैं, फंड मैनेजर्स होते हैं। वो क्यों फाइनेंशियल एडवाइजर्स रहते हैं? क्योंकि उन्होंने भी पढ़ाई की है, उन्होंने भी डिग्री हासिल की है, दे आर आल्सो क्वालिफाइड, दे आर नॉलेजेबल, दे आर प्रोफेशनल्स, दे आर हैविंग ह्यूज एक्सपीरियंस। वो हरदम अपडेट करते हैं। आज हमारी रिसर्च टीम है, रवि जो रिसर्च हमारा रिसर्च हेड है रवि, he is giving more than, I think he is giving more than 15 hours. वो 15 घंटे यही रीड करता रहता है, स्टडी करता रहता है, मार्केट देखता रहता है, अपने आप को अपडेट करता रहता है। तो जस्ट आई एम टेकिंग एन एग्जांपल कि जितने भी एक्सपर्ट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं जाके हम लोग से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करते हैं। उनके पास प्रोफेशनलिज्म होता है, उनके नॉलेज के बेसिस पे, उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो हमें एडवाइस करते हैं। सो दिस इज जस्ट अ समरी कि हु आर एडवाइजर्स। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं। उसी तरह से हमारी इंडस्ट्री में भी फाइनेंशियल एडवाइजर्स, फंड मैनेजर्स, रिसर्च हेड्स होते हैं, जो भी वो भी फी चार्ज करते हैं। So coming on the product side, so products we have trading products, we have investment products. ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स में भी जितने भी ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स भी आज कुंवर जी के प्लेटफॉर्म में आज जो हम लोग दे रहे हैं, जो हमारी रिसर्च टीम है जो लगातार लगी हुई है, उसमें भी ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि जो रिसर्च का, जो नॉलेज का, जो टाइम का, वो फायदा हमारे क्लाइंट तक कैसे पहुंचे। तो एडवाइजरी ट्रेडिंग में जो प्रोडक्ट्स है हमारे, उसमें इक्विटी में आपको काफी सारे ऑप्शन स्ट्रेटेजीज, शॉर्ट टर्म कॉल्स, इन्वेस्टमेंट कॉल्स, पीएनएसटी, एसटीबीटी कॉल्स, इंट्राडे कॉल्स, ये सारे आपके पास जा रहे हैं। कमोडिटीज में भी हमारा काफी अच्छा ट्रेडिंग के कॉल्स आते हैं। करेंसी में भी इसी तरह से ऑप्शंस, इंट्राडे, शॉर्ट टर्म कॉल्स, ये सारे एडवाइजरी प्रोडक्ट्स के सर्विसेज हैं। सारे प्रोडक्ट्स का एक बास्केट है जिसको हम लोग एक ट्रेडिंग एडवाइजरी प्रोडक्ट्स बोलते हैं। उसी तरह से देखा जाए तो एडवाइजरी में जो फाइनेंशियल एडवाइजर होता है, जो फंड मैनेजर होता है, जो रिसर्च करता है, वो इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी एडवाइजरी करता है। वो इन्वेस्टमेंट्स में जो हमारे पास आज के दिन में डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, उसमें इक्विटी सेगमेंट में म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग, एसआईपीस के थ्रू करते हैं, काफी सारे स्टॉक्स पोर्टफोलियोज भी हमने बनाए हैं, काफी सारा स्ट्रक्चर्ड फंड्स है, एक स्टॉक लेंडिंग एंड सेगमेंट है वहां भी है, एक पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चरिंग है वो भी हम लोग करते हैं। कमोडिटीज में भी हम लोग किसी को अगर डिलीवरी लेना है या हेजिंग करना है तो ये सर्विस भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं।
किसी को गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है तो गोल्ड 20 के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। करेंसी में भी सेम है, आप काफी सारे लोग हैं जो बुलियन डीलर्स है, वो हेजिंग करते हैं करेंसी में, जिनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, तो उनको भी हम लोग एडवाइस करते हैं कि कैसे आप अपनी करेंसीज को हेज करो। उसमें हमने प्रोडक्ट्स भी बनाए हैं। आज जो बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें जो डिस्क्रिशनरी फंड्स है, जो फंड्स कुंवर जी की रिसर्च टीम मैनेज कर रही है, जैसे पूरे बास्केट्स में आप देखेंगे कि जो ट्रेडिंग के कॉल्स जाते हैं वो भी एडवाइजरी मैनेज कर रही है, और जो इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट्स है, म्यूचुअल फंड्स है, जो एक्सपर्ट मैनेज करते हैं, उसके अंदर जो फंड्स कुंवर जी की रिसर्च टीम मैनेज कर रही है, जो डिस्क्रिशनरी फंड्स है जिसमें आप हमें पैसा मैनेज करने के लिए देते हो, कुंवर जी की टीम को मैनेज करने के लिए देते हो, वो फंड्स हम लोग आज बेसिकली डिस्कस करेंगे। जिसमें हमारे पास इक्विटी भी है, वी हैव म्यूचुअल फंड्स एडवाइजरी प्रोडक्ट्स, वी हैव कमोडिटीज एंड करेंसी। कोई भी फंड मैनेजमेंट हमारी टीम जो करती है उसमें 3 एस्पेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। चाहे मैं म्यूचुअल फंड करूं, चाहे मैं इक्विटी करूं, चाहे मैं कमोडिटीज करूं, सबसे पहले फंड मैनेजर सिलेक्शन के टाइम पे बहुत ध्यान रखता है। अगर मैं स्टॉक का पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा हूं, मैं इक्विटी फंड्स मैनेज कर रहा हूं, तो मैं सबसे पहले, हमारे जो रिसर्च टीम है वो सबसे पहले ये ध्यान रखती है कि हम लोग स्टॉक सिलेक्शन जब भी करें वो स्टॉक फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग हो, उसमें क्वालिटी हो, उसका बिजनेस मॉडल अच्छा हो, वो फंडामेंटली स्ट्रांग हो, उसमें वैल्यू हो, उस बिजनेस में ग्रोथ हो। तो पहला एस्पेक्ट जो हमारी रिसर्च टीम का रहता है, दैट इज सिलेक्शन ऑफ स्टॉक इन क्वालिटी, वैल्यू एंड ग्रोथ। सेकंड, हम लोग जितने भी पोर्टफोलियोज आज के दिन में एडवाइजरी फंड्स के अंदर चला रहे हैं उसमें अलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी क्लाइंट का पैसा हम लोग एक स्टॉक में या 2 स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। हमारी रिसर्च टीम ने पूरी इंडस्ट्री को, पूरी इक्विटी मार्केट को 10 अलग अलग 10 अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड किया है, और उसमें काफी डिफरेंट इंडस्ट्रीज है। जैसे आप देखोगे फाइनेंशियल्स के अंदर बैंकिंग भी आता है, बैंकिंग के अंदर प्राइवेट बैंक्स भी आता है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी आता है, प्राइवेट बैंक्स के अंदर भी लार्ज कैप बैंक्स भी आते हैं, मिड कैप बैंक्स भी आते हैं। तो ये अलोकेशन और टाइम टू टाइम डाइवर्सिफाई करके रखना इन्वेस्टमेंट का, क्लाइंट का, यही प्रिंसिपल्स है फंड मैनेजमेंट का। जो हमारी रिसर्च टीम, आपका जो पैसा हम लोग मैनेज कर रहे हैं इक्विटी में या म्यूचुअल फंड में, इसमें हम लोग लगातार इस चीज का ध्यान रखते हैं। फिर हमारी टीम लगातार मॉनिटर करती है, मॉनिटरिंग इन द सेंस, कहीं कोई स्टॉक अगर हमारे पोर्टफोलियो में गलती से आ गया और उसका फंडामेंटल हर क्वार्टरली अगर खराब हो रहा है, तो हम लोग कैसे उसमें एग्जिट भी करें। क्योंकि स्टॉक मार्केट का एक नियम होता है कि अच्छा शेयर बिक जाता है और जो नॉन परफॉर्मिंग स्टॉक्स रहता है वो आपके पोर्टफोलियो में हरदम जमा होते रहता है। तो हमारी रिसर्च टीम का हरदम ये काम है कि वो मॉनिटर करे कि उन्होंने जो स्टॉक्स लिए हैं, जो पोर्टफोलियो बनाया है, वो डाइवर्सिफाइड है कि नहीं है, और वो स्टॉक्स अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो हम लोग उसको रिबैलेंस भी करें। सो हमारी जो रिसर्च टीम है जो फंड मैनेजमेंट करती है, इसमें हम लोग सिलेक्शन का, अलोकेशन का, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग का और रिबैलेंसिंग का ध्यान रखते हैं। प्रोडक्ट्स में हमारे पास पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी है, जो आप लोगों को पता होगा, पहले 25 लाख रुपए का साइज था, नाउ वो 50 लाख का हो गया है। तो पीएमएस भी हमारे पास, रजिस्टर्ड पीएमएस भी है, जहां पे हमने कंपनी के मैनेजमेंट का भी हमारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, क्लाइंट्स भी हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, जिसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यही है कि हम लोग डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं, मल्टी कैप अलोकेशन रखें, क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करें, और कंटिन्यूसली क्लाइंट को एक जो सीएजीआर रिटर्न्स हम लोग बोलते हैं वो जनरेट करके दें। लेकिन अभी जो मार्केट का जो फ्लेवर है, अभी हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं पैन इंडिया, 50 लाख साइज सब्जेक्ट टू एक एचएनआई क्लाइंट का है, जो कि एचएनआईज भी आते हैं। लेकिन इक्विटी का क्या है कि पहले कॉन्फिडेंस क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इक्विटी का जो पोर्टफोलियो आप बना रहे हैं, ये जो आपका स्टॉक का सिलेक्शन है, वो सही है कि नहीं है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग काफी सालों से मॉडल पोर्टफोलियोज चला रहे थे, जो कि एक रिटेल भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है एक छोटे अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट से। इस मॉडल पोर्टफोलियोज में हमारा अलोकेशन सिर्फ इक्विटी में रहता है, और इसमें हमने 7 टाइप्स ऑफ डिफरेंट फंड्स बनाया डिफरेंट थ्योरी के हिसाब से। जैसे हमारा जो वाइब्रेंट फंड है, ये मल्टी कैप फंड है,
जिसमें लार्ज कैप स्टॉक्स 55% के आसपास रहते हैं और 45% के आसपास मिड कैप फंड्स रहते हैं। जो विजिलेंट पोर्टफोलियो है, जो विजिलेंट फंड है, जो 5 लाख रुपए से भी कोई क्लाइंट स्टार्ट कर सकता है, उसमें मोर देन 15-16 स्टॉक्स रहते हैं। लार्ज कैप, क्योंकि अभी मार्केट का फ्लेवर लार्ज कैप है और क्लाइंट को अभी क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो हम लोग भी क्लाइंट्स को अभी विजिलेंट पोर्टफोलियो रिकमेंड कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं। इसमें आज के दिन में हमारे पास 75% लार्ज कैप स्टॉक्स है। किस तरह के स्टॉक्स है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ट्रांजिशन इंडिया फंड हमने बनाया था कि आगे जाके जो इस पैंडेमिक से पहले जो सिचुएशन थी ग्लोबली, कि आगे जाके जिस जिस कंपनी में चेंजेस आएगा उस कंपनीज में सेक्टर्स के हिसाब से जो कंपनीज परफॉर्म करेगी, वैसा एक पोर्टफोलियो जहाँ की लार्ज कैप भी हो, मिड कैप भी हो, स्मॉल कैप भी हो, उस थ्योरी के हिसाब से हमने ट्रांजिशन इंडिया फंड बनाया था। फिर हमने फाइनेंशियल सर्विसेज का भी एक फंड बनाया था जिसमें बैंकिंग स्टॉक्स थे, फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं, और वो काफी अच्छा किया था दिसंबर एंड तक में। लेकिन उसके बाद जो आज के दिन में पेंडेमिक है, उसके चलते फाइनेंशियल सेक्टर एक डिलेमा में चल गया है कि बैंकिंग जो है या जो एनबीएफसी कंपनीज है वो अच्छा नहीं करेगी, उनमें एनपीएस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स काफी आएगा। इसके चलते वो पोर्टफोलियो आज के दिन में देखा जाए तो जो बैंकिंग सेक्टर जो इंडेक्स गिरा है उसके आसपास वो फंड भी आज के दिन में गिरा है। इंफ्रा फंड भी हमने लॉन्च किया है और एक स्मॉल कैप पोर्टफोलियो है जो कि प्योर डाइवर्सिफाइड फंड है। एक फंड हमने और बनाया, काफी क्लाइंट्स की डिमांड आती थी कि उनका कंजर्वेटिव अप्रोच है, तो कंजर्वेटिव अप्रोच रखते हुए हमने एक हाइब्रिड फंड बनाया है जिसमें कि 5 लाख रुपए में 50%, मतलब 2.5 लाख रुपया जो है आपका वो 6 से 7-8 स्टॉक में एलोकेशन रहेगा क्वालिटी, और 50% पैसा आपका म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो इट्स अ हाइब्रिड टाइप ऑफ फंड। ये सारे मॉडल पोर्टफोलियोज हैं। इन सब में जो स्टॉक्स रहते हैं वो बेसिकली आप जितने भी हाई क्वालिटी स्टॉक्स है, जैसे अगर विजिलेंट पोर्टफोलियो है हमारा, तो विजिलेंट में आज के दिन में रिलायंस है, एचडीएफसी बैंक, आईटीसी, कोल इंडिया, तो आपको क्वालिटी हरदम हर जगह मिलेगी। और इस पोर्टफोलियो का ब्यूटी सबसे अच्छा है कि ये सारे शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में हैं, और ये सारा डीमैट अकाउंट एज अ सर्विस आपको आपके ट्रेडसेप में, आप हमारा जो मोबाइल ऐप है उसके थ्रू आप देख सकते हैं, आप एनालाइज कर सकते हैं उसका परफॉर्मेंस, आपको परफॉर्मेंस रिपोर्ट वगैरह सब उसमें आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा है। ये परफॉर्मेंस मैंने कल तक अपडेट कर लिया है। आप समझ सकते हो कि आज जो बाजार है वो टॉप से लगभग 15 से 22% तक डाउन है। स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग 22% डाउन है, और आप इंडेक्स देखो, निफ्टी देखोगे तो वो भी 20% जो टॉप से है वो 20% डाउन है अराउंड। तो हम लोग ने जितने भी इक्विटी फंड्स बनाए हैं, हमारा पहला ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि हम लोग नो ब्रेनर इंडेक्स को बीट करें। इंडेक्स इज अ नो ब्रेनर थिंग, बिकॉज आपको अगर सेंसेक्स और निफ्टी जो इंडेक्स है, अगर आपको उसको बीट करना है तो यू कैन सिंपली बाई निफ्टी 20। मार्केट में एक निफ्टी 20 आता है या इंडेक्स फंड आता है। आप अगर इंडेक्स फंड ले लोगे तो इंडेक्स जितना बढ़ेगा आपका पैसा उतना अपने आप बढ़ जाएगा। तो हर फंड मैनेजर का और हमारी रिसर्च टीम का यही टारगेट रहता है कि हम लोग इस इंडेक्स से अच्छा करें। इंडेक्स से अच्छा का मतलब होता है कि इंडेक्स अगर 10% बढ़े तो आपका फंड 12%, 13% बढ़े, और इंडेक्स अगर 10% गिरे तो आपका फंड 7%, 8% गिरे। सो दिस इज कॉल्ड अल्फा। तो आप देख सकते हैं जो हमारा पीएमएस है, अगर इंडेक्स मान लीजिए 7.28% डाउन है कल तक के परफॉर्मेंस में, तो जो हमारा फंड है वो 6.52% डाउन है। और फॉलिंग मार्केट, जब बाजार गिरता रहता है तो इंडेक्स को आउट परफॉर्म करना बहुत मुश्किल है। आप देखिएगा जब बाजार बढ़ता है तो काफी फंड मैनेजर आते हैं, बोलते हैं कि मैंने अभी पैसा लगाया, बाजार गिरा हुआ है और देखो मेरा रिटर्न 30% आ गया, 40% आ गया। वो क्यों आता है? क्योंकि उस वक्त बाजार एक तेजी के फेस में रहता है। लेकिन जब वही बाजार इस तरह का पेंडेमिक या 2008 टाइप का करेक्शन देता है तो पता चलता है वो फंड मैनेजर का जो फंड है जो 30% रिटर्न दिया था वो 70%, 60% माइनस हो गया है। तो हमारी हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम क्लाइंट को हरदम ये बताएं कि सर परफॉर्मेंस क्या होता है, कैसे आपका फंड आउट परफॉर्म करता है, बेस्ट कैसे हर हर मंथली वाइज हम लोग अल्फा जनरेट कर रहे हैं। स्मॉल कैप फंड जो हमारा है वो कल तक के डेट में अगर आप देखो तो इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो 22%, 22% डाउन है,
और जो हमारा फंड है इज डाउन बाय अराउंड 15%। तो हमने स्मॉल कैप में भी 8% का अल्फा जनरेट किया है। जो लार्ज कैप पोर्टफोलियो हमारा विजिलेंट जो है, इंडेक्स अगर मान लीजिए अगस्त से अगर 11% डाउन है तो हमारा फंड 7.3% डाउन है, तो हमने इसमें भी अल्फा जनरेट किया है। ट्रांजिशन इंडिया फंड में भी 4% का अल्फा है। वाइब्रेंट पोर्टफोलियो लगभग फ्लैटिश है क्योंकि मिड कैप बहुत ज्यादा गिरे हैं। तो जो हमारा मिक्स रहा है मिड एंड लार्ज का, मिड का पोर्शन खराब करने के चलते हमने वहां पे अल्फा बहुत ज्यादा जनरेट नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारा फंड अल्फा 0.06 से अल्फा हमने इसमें जनरेट किया, मतलब इंडेक्स से बेहतर किया है। वैसे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स में भी हम लोग लगभग इंडेक्स के आसपास चल रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडेक्स है उसमें रिलायंस लिया हुआ है, इंडेक्स में हिमसेल्फ रिलायंस लिया हुआ है, और रिलायंस हम लोग अपने फंड में नहीं ले रखे बिकॉज वी डू नॉट कंसीडर रिलायंस एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक। तो हमारा ये जो फंड है ये 8.5% से अंडर परफॉर्म किया है ड्यू टू द नॉट प्रॉपर कंपोजिशन इन इंडेक्स एक्चुअली। ये सारा परफॉर्मेंस हम लोग लगातार आप लोग सबको भी भेज रहे हैं। हर मंथ ये अपडेट होता है, हर मंथ इसकी मॉनिटरिंग होती है। आपकी जो भी क्वेरीज आ रही है, काफी सारी क्वेरीज मैं चैट बॉक्स में देख रहा हूँ, ये सारी क्वेरीज हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। इवन हमारे जो रिसर्च हेड है मिस्टर रवि देवरा, वो भी इस वेबिनार में है। तो आपकी कोई स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरी है तो हम लोग लास्ट में सारी क्वेरीज आपकी रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फिर म्यूचुअल फंड्स में आज के दिन में कोई भी क्लाइंट हो, किसी को भी इन्वेस्ट करना है, ये उसके लिए बहुत टफ टास्क हो गया वो कौन से म्यूचुअल फंड में पैसा लगाए। बिकॉज इंडिया में आज के दिन में लगभग 5,000 स्कीम्स हैं म्यूचुअल फंड्स की। उस 5,000 स्कीम्स में उसको कौन सा डेट फंड में पैसा लगाना है, कौन सा लिक्विड फंड में पैसा लगाना है, कौन सा बैलेंस फंड में पैसा लगाना है, कौन सा इक्विटी फंड में पैसा लगाना है तो कितना लगाना है, लगा दिया उसके बाद रीबैलेंसिंग करे कि नहीं करे, ये सारा बहुत बड़ा चैलेंज है एक्चुअली। इस सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो बनाए हैं, और हर फंड का अपना एक ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग किस तरह से उसमें रिटर्न जनरेट करेंगे। अब बेसिक फिलॉसफी यही रहेगी, जो हमने म्यूचुअल फंड्स के भी पोर्टफोलियो बनाया उसमें हम लोग लेते वक्त, पोर्टफोलियो बनाते वक्त सिलेक्शन पे खास ध्यान रखें, अलोकेशन रखें, कभी भी 1 या 2 म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं लगवाएं क्लाइंट का, मॉनिटरिंग करते रहें। जैसे म्यूचुअल फंड्स में भी आप देखिए अभी फ्रैंकलिन टेम्पल्टन में क्या हुआ, तो फॉर्चुनेटली हमारे पास एक भी फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का कोई भी फंड ना इक्विटी में था ना हमारे पास डेट फंड में था। तो हमारे जितने भी क्लाइंट्स थे वो हमारे आज के दिन में उनका पैसा आज के दिन में सही सलामत रह गया। तो ये चीज को ध्यान में रखते हुए कि किस समय हम लोग म्यूचुअल फंड में भी टाइम टू टाइम स्विच करें, क्योंकि कई बार देखा गया है कि जो टॉप 3 फंड, जो टॉप 3 एएमसीज रहते हैं वो 3 साल के बाद टॉप 3 नहीं रहते हैं। आप लोग काफी लोग म्यूचुअल फंड्स में हो सकता है एडवाइस करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप देखो एक समय था जहां पर फ्रैंकलिन के सारे फंड्स चलते थे, उसके बाद एक टाइम आया बिरला का, उसी बीच में टाइम आया मिराई एसेट्स का, अभी आप देखोगे तो टाइम आ गया आपका एक्सिस का। तो परफॉर्मिंग में भी देखोगे तो आप एक्सिस के जितने फंड्स है बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप 3 साल पहले देखो तो एक्सिस कोई रिकमेंड नहीं करता था। तो मैं सिंपली क्या बोलना चाह रहा हूं कि यहाँ पर भी रोटेशन है, यहाँ पर भी कौन सी एमसी अच्छा कर रही है, एमसी में भी कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा कर रहा है, इसका सिलेक्शन करना इट्स अ वेरी टफ टास्क। तो ये काम भी हमारी जो रिसर्च की टीम है, हमारी जो पूरी रिसर्च की टीम है, ये म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी आपका क्लाइंट्स का फंड मैनेज करती है। इसमें हमने 5 डिफरेंट फंड्स बनाए हैं। जो हमारा फिक्स इनकम फंड है, उसका एक ही टारगेट है कि वो हम क्लाइंट को एफडी से कैसे रिटर्न ज्यादा जनरेट करके दें। क्योंकि काफी क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जिनको लगता है कि एफडी में पैसा रख के कोई फायदा नहीं है, और एक्चुअली नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन भी आज एफडी से ज्यादा रिटर्न नहीं दे पा रही है, एफडी का रिटर्न इन्फ्लेशन से भी ज्यादा नहीं है। तो काफी क्लाइंट्स बोलते हैं कि मेरे को एफडी का पैसा से ज्यादा रिटर्न किस में आ जाए, आप उसमें। तो विदाउट एनी रिस्क वी रिकमेंड देम टू गो फॉर फिक्स इनकम फंड्स। और इस फिक्स इनकम फंड्स में हम लोग सिर्फ डेट म्यूचुअल फंड्स लेते हैं। डेट म्यूचुअल फंड्स का हमने इसमें पोर्टफोलियो बनाया, जिसमें हमने लास्ट ईयर आदित्य बिरला सन लाइफ सेविंग फंड्स है, एचडीएफसी कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड है, एसबीआई डायनामिक बॉन्ड फंड है, और निपॉन इंडिया गिल्ड सिक्योरिटीज है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा एलोकेशन थ्योरी है, जैसे हमने 40% आदित्य बिरला में डाला तो हमें वहां पे सिर्फ 7.7% रिटर्न भी मिला।
लेकिन हमने 20% अलोकेशन एचडीएफसी कॉर्पोरेट फंड में डाला तो हमें 9.73% मिला, गिल्ड फंड में डाला तो 14 मिल गया। तो हमारा लास्ट ईयर का रिटर्न अगर आप देखो तो डेट के थ्रू भी क्लाइंट को हमने अराउंड 10% हाइयर रिटर्न्स जनरेट करके दिया है। और ये सारे डेट फंड्स भी जो हम लोग बाई कर रहे हैं, जो या हमारा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है, जैसे इक्विटी में भी जो हमने पोर्टफोलियो बनाया उसमें एचडीएफसी टॉप 100 है, एक्सेस ब्लू चिप 20% है, कैनरा रोबेको 20% है। तो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि आप देख सकते हो कि ऐसा नहीं कि हमने क्लाइंट का 3 लाख रुपया एक ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो इस अलोकेशन थ्योरी के चलते अगर आप देखोगे तो बाजार जहां 25% डाउन है, हमारा इक्विटी का पोर्टफोलियो 17% 15% के आसपास डाउन है। इवन जो रिस्क फ्री डेट पोर्टफोलियो है उसमें हमने 10% के आसपास क्लाइंट को रिटर्न भी जनरेट करके दिया है। तो इस ऑब्जेक्टिव से ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉन्ग ओनली मॉडल म्यूचुअल फंड्स बनाए हुए हैं। और सबसे अच्छा क्या है कि हम लोग ये सारे म्यूचुअल फंड्स भी क्लाइंट के डीमैट अकाउंट में डायरेक्ट प्लान के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स में मैं जस्ट 2 मिनट लूंगा। एक डायरेक्ट प्लान होता है, एक रेगुलर प्लान होता है। रेगुलर प्लान में क्लाइंट का एक्सपेंस रेशियो 2% के आसपास होता है रेगुलर प्लान में, और डायरेक्ट प्लान में जो होता है वो एक्सपेंस रेशियो 1% के आसपास होता है। तो हम लोग क्लाइंट को चला के उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो डायरेक्ट प्लान में करवा रहे हैं। वो सारे म्यूचुअल फंड्स हम लोग बीएससी स्टार प्लेटफॉर्म के थ्रू क्लाइंट के डीमैट अकाउंट में बाई करेंगे, ताकि क्लाइंट हर वक्त ये देख सकता है कि उसके पास कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं। उसके पास मंथली रिपोर्ट आएगी या आपका जो म्यूचुअल फंड है वो इंडेक्स जो हम लोग बोलते हैं अल्फा, वो अल्फा जनरेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। फिक्स इनकम फंड है तो एफडी से ज्यादा रिटर्न जनरेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर भी हमने बहुत ट्रांसपेरेंसी का ध्यान रखा है, कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ध्यान रखा है। सिलेक्शन एलोकेशन जो हमारी फंड मैनेजमेंट की थ्योरी है वो तो हम लोग हर जगह हर पोर्टफोलियो में ध्यान रख ही रहे हैं। फिर हमारे एडवाइजरी प्रोडक्ट्स में हमने कुछ स्ट्रक्चर्ड डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स भी डिजाइन किए हैं। स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट बेसिकली क्या है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स क्लास को मिक्स करके एक रिटर्न जनरेट करने का एक ऑब्जेक्टिव रहता है, जहां की रिस्क मैनेजमेंट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और एक मिनिमम रिटर्न हम लोग क्लाइंट को जनरेट करके दे सके। तो स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स में हमारे पास आज के दिन में कमोडिटीज एंड करेंसी एडवाइजरी फंड है और सिर्फ करेंसी एडवाइजरी फंड भी है। तो कमोडिटी एंड करेंसी जो हमारा प्रोडक्ट है वो 25 लाख से शुरू होता है, और करेंसी जिसमें सिर्फ करेंसी का स्ट्रेटेजीज करते हैं वो 10 लाख से शुरू होता है। लेकिन मैंने इसको स्ट्रक्चर्ड इसलिए बोला कि कोई क्लाइंट अगर 10 लाख रुपए देता है मेरे को, तो मैं उस 10 लाख रुपए में डेट म्यूचुअल फंड्स प्लस इक्विटी दोनों बाई कर सकता हूं। दोनों बाई करके मैं ये करेंसी की स्ट्रेटेजी भी कर सकता हूं। तो हमने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया कि कोई क्लाइंट का 10 लाख रुपए में भी डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स क्लास में इन्वेस्टमेंट हो सकता है, जहां उसका एक रिटर्न भी है वो एक आप बोल सकते हो अश्योर्ड रिटर्न आ सकता है। जैसे अश्योर्ड रिटर्न में आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे कोई क्लाइंट 10 लाख रुपए दिया और वो बोला नहीं मेरे को 15% के आसपास रिटर्न आना चाहिए विदाउट एनी रिस्क, तो मैं क्या करूंगा, डेट फंड्स बाई कर लूंगा, जहां मेरे को हिस्टोरिकली मेरा रिटर्न 7 से 10% आया है। तो 7 से 10% तो उसका रिटर्न अश्योर्ड हो गया, वहां कोई रिस्क नहीं है। और हमारा करेंसी का जो परफॉर्मेंस रहा है वहां हमने देखा है कि लास्ट 1 ईयर में मेरा रिटर्न 10 से 12% आ जाता है। तो आपको 80% पे 8 से 9% डेट फंड का रिटर्न मिल गया। बाकी रेस्ट ऑफ द अमाउंट मैं जो कोलेट्रल की तरह इस्तेमाल कर रहा हूं, हमारी जो रिसर्च टीम इस्तेमाल कर रही है, उसके चलते आपको 10-12% रिटर्न एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो आपका पूरा 10 लाख रुपए में भी हम लोग आराम से 14-15% का रिटर्न जनरेट करके दे सकते हैं विदाउट एनी वॉलेटिलिटी। आप कोई क्लाइंट बोलता नहीं ठीक है अंकुश जी, अगर वॉलेटाइल रहता है 10% ड्रॉडाउन भी आता है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि 10 लाख रुपए में 8 लाख का अच्छा पोर्टफोलियो बना दिए, अच्छे अच्छे स्टॉक्स ले लिए, बाकी 2 लाख रुपया का कैश कंपोनेंट रखते हुए ये पूरा 10 लाख रुपए को मैं स्ट्रक्चर की तरह यूज करते हुए मैं उस पर अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजीज करेंसी की बनाता हूं, तो भी क्लाइंट को 12-13% का रिटर्न हम लोग बोल सकते हैं कि सर आपको एक 10% का रिस्क लेते हुए ड्रॉडाउन हो सकता है, क्योंकि इक्विटी हरदम वॉलेटाइल रहती है। अगर आप 10% का ड्रॉडाउन लेते हैं तो आपको साल का 12-15 रिटर्न 15% रिटर्न के आसपास बैठ सकता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर हमने बनाया। इसमें अभी हम लोग एक काम और भी कर रहे हैं। अभी जैसे काफी सारे क्लाइंट्स है जिनके पास आज के दिन में म्यूचुअल फंड्स या इक्विटीज अनऑर्गेनाइज वे में पड़ी हुई है।
अब उनके लिए ये बहुत टफ डिसीजन है कि वो रिस्ट्रक्चर करे, क्योंकि हर स्टॉक आज के दिन में 50%, 40%, 70% तक डाउन है। तो वो जो उनकी आइडियल होल्डिंग पड़ी हुई है, हम लोग उसको रिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। अगर उनको रिस्ट्रक्चरिंग नहीं है, क्योंकि शेयर को लॉस में बेचना सबसे टफ टास्क होता है, तो उसी पोर्टफोलियो के अगेंस्ट में हम लोग, हमारा जो स्ट्रक्चर्ड फंड है, करेंसी है, कमोडिटीज है, हम लोग उसको भी उस पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और उस एग्जीक्यूशन से क्लाइंट को उसी आइडियल पोर्टफोलियो पे जो पड़ा हुआ है उस पे 12-15% रिटर्न एक्स्ट्रा जनरेट किया जा सकता है. सो these are the different types of structured fund that we have designed for our clients. बेसिकली जब भी डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स का बात करते हैं तो जितने भी क्लाइंट्स हैं, जो भी आज व्यूअर्स हैं, उनको सबसे पहले एक ही चीज आती है कि डेरिवेटिव्स में तो लॉस लगा है. लेकिन डेरिवेटिव्स को अगर दूसरे एंगल से देखा जाए तो मैं यही बोलता हूँ कि उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है रिस्क मैनेजमेंट. अगर आप डेरिवेटिव्स में रिस्क मैनेजमेंट कर लेते हैं, बिकॉज रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए आपके पास डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए, आपका लीवरेज कम से कम होना चाहिए, आप अगर मॉनिटर कर रहे हो और हेजिंग कर रहे हो, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स अगर आप डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स में अगर आप कर पा रहे हो, रिस्क को मैनेज कर पा रहे हो, तो डेरिवेटिव्स में भी आपका जो ड्रॉडाउन है, आपका जो रिस्क है, ये कंट्रोल्ड हो सकता है. और अगर आप रिस्क मैनेज कर पा रहे हो तो आप रिटर्न जनरेट कर पाओगे. तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे जितने भी डेरिवेटिव फंड्स हैं उसमें हम लोग कमोडिटीज का जो फंड है, जो आप जानते हो कुंवर जी आज 60 इयर्स ओल्ड कंपनी है. बेसिकली हम लोग कमोडिटीज में आज के दिन में इंडिया में नंबर 1 है. हमारा जो फिजिकल प्रेजेंस है, हमारी जो खुद की रिसर्च टीम है, उसके साथ साथ क्लाइंट्स को और बेहतर रिसर्च देने के लिए और बेहतर सर्विसेज देने के लिए हमने जॉइंट वेंचर किया है. ट्रांसग्राफ बोल के कंपनी है, जो हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, जिनका जो मेजर काम है वो प्योर कमोडिटीज रिसर्च का है, करेंसी रिसर्च का है. और हम लोग इनके साथ मिलके अपना एक AIF अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, जो एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता है, जो 50 लाख से शुरू होता है, वी आर गोइंग टू लॉन्च वन AIF विथ ट्रांसग्राफ एंड दैट वुड स्टार्ट फ्रॉम 1 CR. वो 1 करोड़ से शुरू होता है. वो हम लोग ट्रांसग्राफ के साथ स्टार्ट कर रहे हैं. तो ट्रांसग्राफ की जो बेसिकली एक्सपर्टाइज है, उनके पास आज के दिन में कोलगेट है, महिंद्रा महिंद्रा है, ब्रिटानिया है, ये सारे उनके क्लाइंट्स हैं जिनको वो अपना कमोडिटीज रिलेटेड जो भी एडवाइजरी होती है वो देते हैं. इनके पास काफी ग्लोबल क्लाइंट्स हैं. ये आज के दिन में लगभग 40,000 करोड़ का खाली एडवाइजरी करते हैं. तो हमने इनके साथ जॉइंट वेंचर किया. हमारा कुंवर जी का जो एक्सपर्टाइज है वो वेयर हाउसेज में है, कोलेटरल मैनेजमेंट में है. तो ये एक हमने एक निश बनाया जहां हमने दोनों मिलके हम लोग कमोडिटीज एंड करेंसी का फंड क्लाइंट के लिए मैनेज कर रहे हैं. कमोडिटीज फंड में बेसिकली क्या है कि कमोडिटीज को अगर आप देखा जाए तो ये एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स की तरह काम आती है, जो लोग कमोडिटीज बिजनेस करते हैं. लेकिन इसमें भी अगर कोई पोर्टफोलियो अप्रोच किया जाए, फंडामेंटल एनालिसिस किया जाए, टेक्निकल एनालिसिस किया जाए, रिस्क पैरामीटर्स को देखा जाए, वर्ल्ड वाइड ट्रेड पॉलिसी को अगर देखा जाए, वेदर इम्पैक्ट क्या, अगर ये सारी चीज अगर कोई डिसीजन लेते वक्त अगर ये सारी चीजों का रिसर्च किया जाए, तो इसको रिसर्च एंगल से बोला जाता है मैपिंग द मार्केट थॉट. जो मार्केट में थॉट आ रहा है, उस थॉट्स में जो फंडामेंटल है, जो टेक्निकल है, जो इकोनॉमिक्स है, अगर ये सारी चीजों को देखा जाए, सप्लाई डिमांड क्या है कमोडिटी में, तो आप एक रिसर्च एंगल से आप बोल सकते हो कि इसमें रिसर्च किया जा रहा है. तो आज कुंवर जी ट्रांसग्राफ बेसिकली हम लोग इसमें जो कमोडिटीज का फंड चला रहा है उसमें हम लोग फंडामेंटल भी देख रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड क्या चल रहा है, ट्रेड पॉलिसी क्या है, हिस्टोरिकली उसका क्या परफॉर्मेंस आया है, टेक्निकल क्या आ रहा है, आगे जाके इसका सप्लाई डिमांड कैसा बना रहेगा, एग्रो कमोडिटीज है तो वेदर का क्या इम्पैक्ट है. ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग कमोडिटीज का फंड हमारा बनाए हैं, जिसमें हमारा अलोकेशन डाइवर्सिफिकेशन, जो हमारी जो सबसे पहले रिसर्च टीम की थ्योरी है कि एक पोर्टफोलियो अलोकेशन रहे. तो हम लोग इसमें पोर्टफोलियो अलोकेशन के हिसाब से आज के दिन में ये जितनी भी कमोडिटीज है इसमें इन्वेस्ट करते हैं. तो नॉर्मली लोग समझते हैं कि कमोडिटीज का मतलब सिर्फ गोल्ड सिल्वर होता है. ऐसा नहीं होता. गोल्ड सिल्वर तो प्रीसियस मेटल में आता है, लेकिन जस्ट फॉर योर नॉलेज कमोडिटीज में बेस मेटल भी होता है, जो 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेस मेटल है. एल्युमिनियम है, कॉपर है, लीड, जिंक है. एनर्जी में क्रूड ऑयल भी आता है. प्रीसियस मेटल में गोल्ड सिल्वर आता है. ऑयल सीड्स होती है, आपको करेंसी भी काफी सारी होती हैं, और अदर जो एग्रो कमोडिटीज है. तो कमोडिटीज का मतलब सिर्फ गोल्ड सिल्वर या क्रूड नहीं होता है, उसके अलावा मेटल्स भी होते हैं, एनर्जी भी होते हैं, करेंसी. ये सारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसमें ही हमारा जो कमोडिटीज फंड है उसमें इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं.
एक पोर्टफोलियो का अप्रोच रखते हैं। और आप देख सकते हैं कि इसमें एक रिमार्क्स दिया हुआ है, जैसे बेस मेटल में एल्युमिनियम है तो उसको हम लोग मिड कैप कंसीडर करते हैं, अगर गोल्ड है तो वो लार्ज कैप में आता है। उसको लार्ज कैप बेसिकली कमोडिटी सेंस में इसलिए बोला गया है कि उसका जो प्राइस होता है वो ग्लोबल कमोडिटी से ड्राइव होता है, ना कि इंडियन मार्केट पे सिर्फ ड्राइव होता है। क्रूड का प्राइस है, गोल्ड का है, या सिल्वर का है, या मान लीजिए कॉपर का है, तो वो लार्ज कैप कैटेगरी में आता है, जिसमें वॉल्यूम भी होता है, उसमें लगातार वॉल्यूम भी होता है, उसमें कोई प्राइस मैनिपुलेशन नहीं हो सकता है। तो हमारा जो पोर्टफोलियो रहता है उसमें हम लोग लार्ज कैप अलोकेशन ज्यादा रखते हैं, क्वालिटी कमोडिटीज पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट, ज्यादा एक पोर्टफोलियो बना के रखते हैं। ये कुछ हिस्टोरिकल डाटा है जो हम लोगों ने एडवाइजरी अपने क्लाइंट्स को दी लास्ट 5 इयर्स पे। ये ऑडिटेड डाटा है, इसी के बेसिस पे हमारा कमोडिटीज का AIF भी आने वाला है अभी। और ये परफॉर्मेंस है जो लास्ट 5 इयर्स का हमने परफॉर्मेंस देखा है, जो हमारा कमोडिटीज फंड चल रहा है उसमें जो हमारा लीवरेज है, जैसे कमोडिटीज में क्या है कि आप 7, 8, 10% मार्जिन देके आप 10 टाइम्स तक लीवरेज कर सकते हो। लेकिन हम लोग जो क्लाइंट से 25 लाख रुपया ले रहे हैं उसके अगेंस्ट में हमारा जो एवरेज लीवरेज है वो लेस देन 1 है। इवन हाइयर लीवरेज भी आप देखोगे तो 2 टाइम्स तक आज तक गया है। तो हम लोग जो प्रिंसिपल्स ऑफ जो बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट, जहां पे हम लोग लीवरेज नहीं करते ज्यादा, आप देख सकते हो कि सारे प्रोडक्ट्स, सारे फंड्स में हमने जब भी ट्रेड किया है तो हमारा जो लीवरेज है वो अराउंड 2 टाइम्स रहा है, एवरेज लीवरेज तो 1 से भी कम रहा है। और जो रिटर्न्स आया है, जैसे 15-16 में जो फंड्स का रिटर्न था दैट वाज 12%, 16-17 में 13% आया है, 17-18 में 19-20% आया है। तो जो कमोडिटी स्ट्रक्चर्ड फंड हमने बनाया है, जो कि किसी क्लाइंट के पास अगर स्टॉक्स पड़ा हुआ है या म्यूचुअल फंड्स पड़ा हुआ है, तो उस जो आपका आइडियल होल्डिंग है उसके अगेंस्ट में भी आपको 18-20% रिटर्न जनरेट हम लोग करके दे सकते हैं हमारी कमोडिटीज फंड में भी। इसका जो रिस्क मैनेजमेंट गाइडलाइन है, कोई भी कमोडिटीज में 20% से ज्यादा हमारा लोकेशन नहीं रहता है। जैसे सपोज करिए 25 लाख रुपए है और मेरा लीवरेज अगर 2 टाइम्स का है तो मतलब 50 लैक्स है, 50 लैक्स में 20% मतलब 10 लाख रुपए से ज्यादा कोई भी कमोडिटीज में हमारा एक्सपोजर इसमें नहीं रहेगा। फिर जो एग्री और नॉन एग्री है, एग्री जो आपका एग्री कमोडिटीज है उसमें हमारा एक्सपोजर सिर्फ 30% है, बाकी 70% एक्सपोजर हमारा मेटल में या गोल्ड सिल्वर में ही रहता है इसमें। इसका जो परफॉर्मेंस आया है अभी लास्ट, जो हम लोग अपने क्लाइंट्स का स्टार्ट किए हैं, क्लाइंट्स के बुक्स में जो हमारा काम चालू हुआ है अक्टूबर से लेके, वो अभी तक में 2 बार जो हमारा रिस्क मैनेजमेंट है, तो रिस्क मैनेजमेंट में हम लोग बोलते हैं कि इसका ड्रॉडाउन जो है वो 8 से 10% का रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि इंडियन मार्केट में अभी जो कमोडिटीज भी जो पहले था, जो कि कैश मार्केट में सेटल हो जाता था, उसमें डिलीवरी का सिस्टम आ गया था। तो वो आने से अभी हम मार्केट किस सिनेरियो में रहेगा ये थोड़ा समझना मुश्किल था फंड मैनेजर के लिए, इसलिए इस टाइम पे उन्होंने हम फंड में जो ड्रॉडाउन आया था वो 7.5% का और 9% के आसपास आया था। लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे तो 7 मंथ्स में आराम से इसमें 8 से 9%, 10% का रिटर्न जनरेट हुआ है। तो इसका एक लाइव परफॉर्मेंस है, आप अगर चाहेंगे तो उसकी क्लाइंट का लेजर और आपका जो परफॉर्मेंस है वो भी हम लोग आपको भेज सकते हैं। सिमिलरली करेंसी की जो स्ट्रेटेजीज हम लोग चला रहे हैं, इसमें अभी हमारा पोर्टफोलियो माइनस है 1.27% से माइनस है। वो भी आप समझ सकते हो कि ग्लोबल कमोडिटीज आज के दिन में ग्लोबल करेंसी जो है वो क्या वॉलेटाइल है। इस वॉलेटिलिटी में आपको पता है कि इक्विटी इंडेक्स जो है, जो शेयर मार्केट है, वो 20-30% डाउन है। बाकी कमोडिटीज भी आपको पता है जो आज डिकेड लो पे है। वहीं पे जो हमने एक एडवाइजरी के थ्रू करेंसी का जो पोर्टफोलियो बनाया था, जहां पे हम लोग स्ट्रेटेजी वाइज काम करते हैं, तो वो सिर्फ 1.27% माइनस है। तो अब इतनी वॉलेटिलिटी, क्लाइंट का पोर्टफोलियो इतना खराब है, सब कुछ होने के बावजूद भी हमने इसमें काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया एंड वी आर होपफुल कि 1 साल में जो हमारा टारगेट है 12-13% का, हम लोग इसमें, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसमें जनरेट करके क्लाइंट्स को जरूर देंगे। ये एक समरी है जो हम लोग क्लाइंट्स को हरदम भेजते रहते हैं कि जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे एडवाइजरी के जितने प्रोडक्ट्स हैं उसमें आपका रिटर्न्स क्या एक्सपेक्टेड है, रिस्क क्या है, क्योंकि हम लोग बार बार क्लाइंट को रिस्क मैनेजमेंट ज्यादा कोशिश करते हैं अवेयर करने का, क्योंकि ये सबका एक मानना होता है कि आपको अगर रिस्क पता रहे तो आपको पैसा लगाने में डर नहीं आएगा। तो हमारी टीम का, हमारी रिसर्च टीम का, वेल्थ टीम का एक ही मानना है कि क्लाइंट को हम लोग अवेयर करें कि हर प्रोडक्ट में रिस्क क्या है।
तो करेंसी प्रोडक्ट में हमारा जो रिस्क है वो 10% का ड्रॉडाउन है, जो हमने हिस्टोरिकली भी देखा है, और जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो 15 से 18% का है। और जब भी क्लाइंट का हम लोग इन्वेस्टमेंट कराते हैं, हम लोग बोलते हैं सर आपका टाइम होराइजन कम से कम 1 से 2 साल होना चाहिए, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 25 लाख का है, लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटेजी है। करेंसी फंड में भी आपका रिटर्न जो है 15% 18% के आसपास आ सकता है, रिस्क 10% का है, आपका ड्रॉडाउन हर फंड में 10% का है। जो हमारा रजिस्टर्ड पीएमएस है उसका रिटर्न 14 से 15%, इक्विटी का नियम भी है, वो 14 से 15% रिटर्न देती है ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 5 इयर्स। ये लेकिन 50 लाख का पोर्टफोलियो है रजिस्टर्ड पीएमएस जो है। इक्विटी जो मॉडल फंड्स है जो 5-5 लाख रुपए के पोर्टफोलियोज हैं, उनमें हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न 12 से 15% CAGR कैगर रिटर्न बोलते हैं, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, क्योंकि इक्विटी का नियम है वो हर साल रिटर्न नहीं देती है, कभी अच्छा देती है कभी खराब देती है। तो 12 से 14% आपका CAGR रिटर्न आना चाहिए, 3 से 5 साल का टाइम होराइजन होना चाहिए, और इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए का है। ऐसे इक्विटी के म्यूचुअल फंड्स भी हमने काफी सारे बनाए हैं, और डेट फंड्स भी है हमारे पास, जिसमें आपको 8 से 10% का अश्योर्ड रिटर्न, रिस्क फ्री रिटर्न आपको डेट के पोर्टफोलियो के थ्रू आ सकता है। चार्जेस भी कई बार काफी सारे हमारे पार्टनर्स भी आज हैं इसमें, काफी सारे पार्टनर्स के क्लाइंट्स भी हैं और काफी सारे नए क्लाइंट्स भी है। तो चार्जेस जितने भी एडवाइजरी फंड्स है या रजिस्टर्ड पीएमएस है, मैंने उसको भी इस प्रेजेंटेशन में लिया है। जो रजिस्टर्ड पीएमएस है, चाहे वो हमारा हो चाहे और भी जितने भी एएमसीज हैं, उस रजिस्टर्ड पीएमएस में जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 50 लाख का है, उसमें एक ब्रोकरेज रेट लगती है, एक जो भी बाई सेल होता है उसकी एक ब्रोकरेज रेट लगती है, और साथ साथ मैनेजमेंट फी भी लगती है। ये मैनेजमेंट फी वेरिएबल है, पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड अगर आप देखोगे तो ये 2.5% है। आपको मैनेजमेंट फी अलग से देना पड़ता है ब्रोकरेज के साथ। तो आपका पूरे साल का जो रजिस्टर्ड पीएमएस में खर्चा हो, चाहे वो कुंवर जी का हो, चाहे अदर हाउसेस का हो, चाहे बिरला हो, चाहे मोतीलाल हो, कोई भी हाउसेस का हो, वो आपका स्टैंडर्ड साल का खर्चा आप मान के चलो आपको 2.5 से 3% आना ही आना है। सो दीज आर द स्टैंडर्ड चार्जेस एप्लीकेबल इन ऑल द फंड्स। कुंवर जी का भी जो मल्टी कैप पीएमएस है उसमें भी आपको पूरे साल का 3% के आसपास म्यूचुअल कुंवर जी का जो पीएमएस रजिस्टर्ड फंड है उसमें आपको आएगा। लेकिन जो इक्विटी फंड्स है, जो मॉडल फंड्स हमने बनाए हैं जो 5 लाख रुपए के हैं, उसमें पूरे साल का खर्चा आपका 2% के आसपास आता है। ये 2% हम लोग जो एडवाइजरी फंड्स होते हैं इसमें क्योंकि मैनेजमेंट फी चार्ज नहीं कर सकते, कोई मैनेजमेंट फी नहीं होती है, आपका कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है, तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, जब पोर्टफोलियो बनाते हैं या जो क्वार्टरली बेसिस पे हम लोग इसको रिव्यू करते हैं, या फंड मैनेजर को लगता है कि नहीं को स्टॉक में अच्छा प्रॉफिट आया तो उसको बुक करना है, या कोई स्टॉक फंडामेंटली खराब हो रहा है तो उसमें एग्जिट करना है, इस तरह का जब भी रिबैलेंसिंग होगा या पोर्टफोलियो बनेगा तो सिर्फ हायर ट्रांजेक्शन चार्जेस लगेगा जो 1.5% है। तो सिर्फ हायर ट्रांजेक्शन चार्जेस के चलते, क्योंकि ट्रेडिंग पोर्टफोलियो होता नहीं है ये सब, पूरे साल में आपको 2 या 3 ट्रेड मिलेंगे, इसमें आपका जो टोटल एक्सपेंस है साल का दैट वुड बी अराउंड 2%। इसी तरह से म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो है, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं, तो आपका वहां एक्सपेंस रेशियो कम लग रहा है, लेकिन आपको एडवाइजरी मिल रही है, आपको परफॉर्मेंस मिल रहा है, आपके अगेंस्ट में फंड मैनेजर पोर्टफोलियो को रिव्यू कर रहा है, तो आपका इसमें 1.25% के आसपास का पूरे साल, पूरे एक साल में आपका 3 लाख पे 3,000 रुपए के आसपास साल का पूरा आपका खर्चा आता है इसमें। कमोडिटीज की जो स्ट्रेटेजी है, करेंसी की जो स्ट्रेटेजी है, जहां की एक एक्टिव मैनेजमेंट होता है, लगातार एक लॉन्ग व्यू के साथ साथ शॉर्ट टर्म में भी प्रॉफिट बुकिंग होती है, उसमें पूरे साल का खर्चा आपका 2 से 3% का आएगा, ब्रोकरेज का खर्चा, बाकी कोई आपका मैनेजमेंट फी वगैरह नहीं है। लेकिन कमोडिटीज और करेंसी में हमने ये भी देखा है कि अगर मैं क्लाइंट को कमा के दूंगा, हमारी टीम अगर क्लाइंट को प्रॉफिट करके देती है तो हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग भी करते हैं उसमें। तो 10% हमारा हर्डल रेट है, 10% के ऊपर अगर जो प्रॉफिट आती है उसमें से 20% हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग क्लाइंट के साथ करते हैं। तो ये चार्जेस है, इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन रहेगा तो हमारी वेल्थ टीम है, जितने भी हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज की टीम है, आप उससे डिस्कस कर सकते हैं। आपको अगर कोई भी क्वेरी आए तो हम उसको फर्दर डिस्कशन किया जा सकता है। लास्ट 2 स्लाइड और है। एक इम्पोर्टेंस मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा पूरे डिस्कशन से कि इम्पोर्टेंस क्या है एडवाइजरी प्रोडक्ट्स का, एसेट्स एलोकेशन का। आप एडवाइजरी प्रोडक्ट्स या एडवाइजर्स के थ्रू जाते हैं तो आपको
एक डाइवर्सिफिकेशंस का फायदा मिलेगा आपको, एक आपको पोर्टफोलियो अप्रोच मिलेगा जहां आपका रिस्क मैनेज्ड है। क्योंकि आज मान लीजिए कोई भी खुद से इन्वेस्ट करता है, वो सिलेक्शन अच्छा कर सकता है लेकिन एलोकेशन नहीं कर पाएगा, वो डाइवर्सिफाई नहीं कर पाएगा, उसको कौन सा फंड लेना है, कौन सा स्टॉक लेना है, ये सिर्फ एक एक्सपर्ट जो रात दिन लगा हुआ है, जिसके पास नॉलेज है, तो आपको एडवाइजरी प्रोडक्ट्स के थ्रू ये सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। एसेट्स एलोकेशन काफी पॉपुलर वर्ड अभी होते जा रहा है, क्योंकि इस पेंडेमिक के बाद लोगों को समझ में आ गया कि जिन्होंने इक्विटी में ही सिर्फ इन्वेस्ट किया है उनका पोर्टफोलियो आज 40% 50% डाउन है। तो एसेट्स एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एसेट्स एलोकेशन सिंपली डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। जैसे आप सिर्फ अगर आपका 100 रुपीज मार्केट में इन्वेस्टमेंट है तो अब 100 रुपीज इक्विटी में मत लगाओ। अब इक्विटी के अलावा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है, म्यूचुअल फंड्स में भी बैलेंस फंड है, डेट फंड्स है, जहाँ की आपका रिस्क मैनेज हो सकता है। आप गोल्ड बाई कर सकते हो, गोल्ड लेने का तरीका, आप गोल्ड बीज भी ले सकते हो, आप गोल्ड डिलीवरी भी ले सकते हो, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करो, बॉन्ड्स में करो। तो बेसिकली आपको एडवाइजरी प्रोडक्ट्स हो या एसेट्स अलोकेशन हो, इससे आपका रिस्क मैनेज रहेगा, आपका पैसा अलोकेटेड रहेगा, और आपका पैसा अगर अलोकेटेड रहा, आपका कैपिटल प्रोटेक्शन रहा, तो आगे जाके आपका पैसा उतना ही ज्यादा रिटर्न देगा। तो इस पेंडेमिक के बाद हम लोग सबको सीखने सबसे इम्पोर्टेंट यही मिला है, जो कि बार बार अभी आ भी रहा है कि आप अगर बचे हुए हैं और आपका पैसा बचा हुआ है तो आगे जाके आपका पैसा बनेगा भी और हम लोग भी बहुत अच्छा करेंगे। तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट में भी सबसे इम्पोर्टेंट जो एडवाइजरी प्रोडक्ट्स या एसेट्स एलोकेशन से आता है वो है कैपिटल प्रोटेक्शन। कैपिटल प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका पैसा बचा होना जरूरी है, और पैसा बचा के रखने के लिए आपको डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा। चाहे आप इक्विटी करें, इक्विटी में भी बहुत सारे क्लासेस हैं। इक्विटी में भी आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है, इक्विटी डेट फंड्स है, मॉडल फंड्स है। म्यूचुअल फंड्स में करें तो म्यूचुअल फंड्स में बैलेंस फंड्स है, डेट फंड्स है, लिक्विड फंड्स है, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स फंड्स है। ये सारी एडवाइजरी हम लोग करते हैं, और क्लाइंट्स को जैसे जैसे उनकी नीड होती है, रिस्क प्रोफाइलिंग होती है, उसके हिसाब से हम पोर्टफोलियोज बना के देते हैं। लास्ट में, एकदम लास्ट में मैंने एक जस्ट एडवाइस बनाई है, क्योंकि आप लोगों की इच्छा होगी कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो दो कैटेगरी ऑफ क्लाइंट्स रहते हैं मार्केट में, दो तरह के व्यूअर्स हैं आज के दिन में, और बेसिकली उसमें बोला जाता है एक ट्रेडर्स हैं और एक इन्वेस्टर्स हैं। तो हमारे क्लाइंट से यही एडवाइस रहेगी, आप अगर ट्रेडर्स हैं आप ट्रेडिंग करो, लेकिन ट्रेडिंग करते वक्त आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। आप रिसर्च को फॉलो करो, रिसर्च के जो कॉल्स आते हैं उनको फॉलो करो, आप अपना रिस्क को मैनेज करो कि आपने जो पैसा लगाया आप उसमें कितना रिस्क ले रहे हो। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है, आप स्टॉप लॉस जरूर लगाओ। ये सबसे पहला ट्रेडिंग का प्रिंसिपल माना जाता है कि आप स्टॉप लॉस मैनेज करो। क्वालिटी स्टॉक्स में ट्रेडिंग करो। न्यूज आ रहा है कोई भी स्टॉक में, आप उसमें ट्रेडिंग मत करो कि आपको अभी टीवी में दिख गया इसमें कुछ होने वाला है तो आप ले लो। उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया ये क्लाइंट फंस जाता है। तो हम लोग अपने क्लाइंट को यही एडवाइस करते हैं, अगर वो ट्रेडर हैं तो आप अपना स्टॉक्स भी जो रहता है वो क्वालिटी स्टॉक्स में ट्रेडिंग करें। एक ही स्टॉक में ट्रेडिंग मत करें, आप 3-4 स्टॉक ले लो, 5 स्टॉक ले लो, आप 5 स्टॉक में अपना आपका जो पैसा उसको बांट लो, उसमें भी आप अपनी एक स्टाइल बना लो। अगर आपका क्वालिटी स्टॉक्स में आप ट्रेडिंग कर रहे हो, स्टॉप लॉस रख रहे हो और रिसर्च को आप फॉलो कर रहे हो, आपको हेजिंग करना चाहिए। अगर आपको हेजिंग नहीं आती तो हमारी टीम में आप कैसे आप ऑप्शंस को यूज कर सकते हो ट्रेडिंग में भी, आप उसको यूज करो। अगर ये सारी चीजें अगर आप ट्रेडिंग में अगर प्रिंसिपल्स को अगर आप अप्लाई करते हो तो ट्रेडिंग में भी आपका पैसा बहुत अच्छा बन सकता है, आपका कैपिटल प्रोटेक्शन रह सकती है, आपकी पूंजी जो आपका कैपिटल है वो नहीं टूटेगा, और इसमें भी आपको अच्छा रिटर्न जनरेट हो सकता है। और जो ट्रेडर टाइप के भी क्लाइंट हैं उनको कम से कम 10 से 15%, 25% हाइयर साइड में थोड़ा सा पैसा उनको लॉन्ग टर्म स्टॉक्स में, क्वालिटी स्टॉक्स में, रिलायंस, एचडीएफसी, इस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि उनका ट्रेडिंग का भी पोर्टफोलियो में एक छोटा सा कंपोनेंट इन्वेस्टमेंट का रहे। तो ये हमारी एडवाइस है ट्रेडर्स क्लाइंट्स को। और इन्वेस्टर्स को जो हम लोग बार बार हमारी वेल्थ टीम और रिसर्च टीम और हमारे जो जितने भी रिलेशनशिप मैनेजर है वो इन्वेस्टर्स को यही गाइड करते हैं कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट करो, आपका टाइम होराइजन इन्वेस्टमेंट का मिनिमम 3 से 5 साल का होना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट का माइंडसेट रखते हैं तो आपको 3 से 5 साल का टाइम होराइजन रख के ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सिंपली जैसे आप एफडी करते हैं तो आपको पता है कि एफडी आपने 1 साल के लिए किया है और 1 साल के बाद आपको 5% या 6% मिलेगा, तो आपको पता है कि इसमें मेरा टाइम होराइजन 1 साल है और मेरे को रिटर्न 5% आएगा। वैसे इक्विटी का नियम है कि इसका टाइम होराइजन 3 से 5 साल का है। इसका जो रिटर्न आता है, जो एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है, वो इक्विटी में बोला जाता है कि आपको एफडी प्लस इन्फ्लेशन, इक्विटी का नियम है वो आपको एफडी प्लस इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न देगी।
हिस्टोरिकली भी आप देखो तो इंडेक्स का जो रिटर्न है वो 10 से 12% CAGR का आया है। तो आपका माइंडसेट होना चाहिए 3 से 5 साल का, आपका रिटर्न एक्सपेक्टेड 10 से 12% होना चाहिए। आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, लिक्विड फंड्स के थ्रू, SIP बहुत अच्छा है, SIP हर आदमी को करना चाहिए। आपको अगर लगता नहीं मेरे को ये सब नहीं करना, मेरे को स्टॉक्स बताना है, तो हमारी जो कंपनी स्टॉक्स देती है, हमने अभी 1 महीने पहले रिलायंस दिलवाया था, आप देखो कल वो फ्लोट भी हमने मार्केट में किया है, 35% रिटर्न आया। उसमें हमने लीवर दिलवाया, रिटर्न नहीं आया, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखोगे जिसमें बजाज फाइनेंस भी था, हेवेल्स भी था, रिलायंस भी था, तो ओवरऑल पोर्टफोलियो काफी अच्छा किया है। तो इस तरह के भी एडवाइजरी के जो इन्वेस्टमेंट कॉल्स आते हैं, जो हम लोग हर महीना आपको 3, 4, 2 जैसे भी होगा हम लोग देंगे आपको, आप उसमें काम करो। फिर आपको लगता है कि नहीं, आपको लगता है कि नहीं आप ये चीज नहीं कर सकते हो, आप ट्रैक नहीं कर सकते हो क्योंकि आप अपने बिजनेस में बिजी हो, हर आदमी अपने काम में बिजी है। तो आपको आपको अगर लगता है कि नहीं हमारी जो रिसर्च की टीम है, कुंवर जी की जो आज रिसर्च की टीम है, जो हमने पोर्टफोलियोज चलाए हैं, उसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करो। आपका साइज अगर छोटा है, आपके पास 5 लाख रुपए है, तो आप इक्विटी के मॉडल फंड्स करो। आपको लगता है कि नहीं मैं 5 लाख नहीं, मेरे पास 3 लाख है, आप 3 लाख रुपए, 3 लाख का मॉडल म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो बनाओ। आपके पास एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है, आपके पास ऐसे स्टॉक्स है जो आप भी ट्रैक नहीं कर रहे, आपने देखना छोड़ दिया कि भाई मेरे पास तो सुजलॉन पड़ा था, मैंने छोड़ दिया, यूनिटेक था, छोड़ दिया। वैसे पोर्टफोलियोज में अगर वैल्यू है तो आप उसको रिस्ट्रक्चर करो, क्योंकि हर साल हर बार जब तेजी आती है वो नया स्टॉक उस तेजी में पार्टिसिपेट करता है। तो आप अपने पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर करो, उसमें आपका अगर आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है तो आप PMS कर सकते हो, 25 लाख करना है तो कमोडिटीज कर सकते हो, 10 लाख है तो करेंसी कर सकते हो। और इन्वेस्टमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है जो थ्योरी हम लोग को करते हैं, वो हम लोग कैपिटल प्रोटेक्शन का हरदम ध्यान रखते हैं। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्लाइंट जो फंड हमें मैनेज करने दे रहा है उसमें हम उसका पैसा बचा के रखें। आज अगर आप देखो बाजार इतना गिरा है, हमारा फंड में मान लीजिए किसी ने 10 लाख रुपए दिया, तो वो आज 6%, 7% डाउन है। डाउन इन द सेंस स्टॉक का दाम गिर गया, लॉस बुक नहीं हुआ है। तो ये इसी को बोलते हैं कैपिटल प्रोटेक्शन। अगर 10 लाख रुपया सपोज करिए किसी का 2 लाख रुपया हो जाता है, या लीवरेज करके हमने ट्रेडिंग कर दिया होता, तो वो क्लाइंट का कैपिटल प्रोटेक्शन नहीं होता। तो हमारे जितने भी इन्वेस्टमेंट की थ्योरी रहती है उसमें कैपिटल प्रोटेक्शन हमारी सबसे पहले इंपॉर्टेंस रहती है। फिर हम बाजार को बीट करें, इंडेक्स को ज्यादा बीट करें। आज मान लीजिए इंडेक्स पूरा साल में अगर 20% रिटर्न दिया तो हम लोग कैसे 25% जनरेट करें, तो हम लोग कैसे इन्वेस्टर्स के लिए अल्फा जनरेट करके दें। और लास्ट में होता है कि आप परफॉर्मेंस रिव्यू करो। कैसे क्लाइंट बोलता है कि आप जैसे मान लीजिए अभी अभी हमारा फंड 7% डाउन है, तो लोग बोलते हैं हमको जी आप भी तो माइनस में है। तो इसमें आपको पीयर कंपैरिजन करना पड़ेगा। पीयर कंपैरिजन का मतलब क्या आता है कि आप 10 लाख रुपए कुंवर जी के फंड में डालें, 10 लाख रुपया सपोज करिए आपने बिरला का म्यूचुअल फंड किया, 10 लाख रुपया आपने खुद की ट्रेडिंग की, और 10 लाख रुपया आपने इंडेक्स बाय किया। आप ऐसे देखो कि 1 साल पहले आपने 10 लाख रुपए इंडेक्स में डाला और इंडेक्स 10% डाउन है। आपने 10 लाख रुपया बिरला के म्यूचुअल फंड में डाला, आज वो 20% डाउन है। 10 लाख रुपया आपको कुंवर जी में डाला, वो 7% डाउन है। तो आप क्या बोलोगे, वो 20% डाउन है, इंडेक्स 10% डाउन है और कुंवर जी 7% डाउन है। इसको बोलते हैं पीयर कंपैरिजन। और यही 10 लाख रुपया अगर आप खुद से करते तो क्या होता। तो आप जब भी फंड परफॉर्मेंस की बात करते हो आपको पीयर कंपैरिजन देखना पड़ेगा। हम लोग क्लाइंट को हरदम दिखाते भी हैं पीयर के साथ साथ रिलेटिव, कि भाई हम लोग जब सेल्स किए हैं, जब हम लोग आपके पास जाके क्लाइंट को बताते हैं, तो आपको ये भी देखना है कि वो फंड बेंचमार्क को कोई आउट परफॉर्म कर पा रहा है। तो फंड का परफॉर्मेंस इन्वेस्टर्स के लिए बहुत जरूरी है। वो हर क्वार्टर में रिव्यू करे कि जो भी पैसा उसने लगाया वो इंडेक्स को बीट कर पा रहा है कि नहीं, और मार्केट को बीट कर पा रहा है कि नहीं। So this is simply advice to all my traders and investors client। जिनको लगता है वो खुद से कर सकते हैं उन्हें खुद से करना चाहिए, जिनको लगता है वो खुद से टाइम नहीं दे सकते हैं उनसे टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग नहीं हो सकती, टाइम टू टाइम रिबैलेंसिंग नहीं हो सकती, क्योंकि रिबैलेंसिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे कहावत है ना कि डॉक्टर अपने बच्चे का ऑपरेशन सही से नहीं कर सकता क्योंकि वो इमोशनल होता है, वैसे क्लाइंट भी जो होता है अपना स्टॉक कभी लॉस में नहीं बेच सकता है। उसका अच्छा स्टॉक बिक जाता है और लॉस का स्टॉक पड़ा रहता है। तो आपको अगर लगता है अब ये सारी चीज ट्रेडिंग में और इन्वेस्टमेंट में कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए। अदरवाइज जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो एडवाइजर्स होते हैं, चाहे वो डॉक्टर होते हैं, चाहे लॉयर होते हैं, चाहे फाइनेंशियल, हम लोग उसके पास जाते हैं। उसी तरह से आपको आपका जो पैसा है वो मैनेज करने के लिए एक्सपर्ट्स को देना चाहिए। So this is from my side. Last, I would like to thanks to all the viewers. Happy trading and investing both.
एंड द लाइन दैट आई वुड लाइक टू फ्लोट टू एवरीवन इन द मार्केट, क्योंकि मैं खुद एडवाइजरी में बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ, because I think I am expert in convincing my client. मैं क्लाइंट को कैसे समझाऊं, मैं उसमें एक्सपर्ट हूँ। तो मेरा अर्थ ये रहता है कि मैं क्लाइंट को कन्विंस करूं कि आप एक्सपर्ट्स के थ्रू जाइए। I am not a research guy, but I understand the importance of research. I understand what is fundamental and what is technical analysis go on, how the fund perform, what are the performance risk क्या है। तो मैं हरदम उस चीज पे बिलीव करता हूँ, और मैं हरदम ये बोलता हूँ कि जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं, बिलीव इन एडवाइजरी एंड इन्वेस्ट थ्रू एडवाइजर्स। ऑलवेज इन्वेस्ट थ्रू एडवाइजर्स। अगर आपको 100 रुपए इन्वेस्टमेंट करना है, आपको लगता नहीं मेरा एडवाइजर नहीं कर सकता, आप उसके थ्रू 25 रुपया 25% करो, और फिर 1 साल के बाद 6 महीने के बाद आप परफॉर्मेंस रिव्यू कर लो। आप ये देखो कि आपने 75% किया, उसने 25% किया, आप डिफरेंस देखो कि आपका पैसा बचा हुआ है कि नहीं, क्या रिटर्न आया, क्या लॉस प्रॉफिट है, देन यू विल गेट अ कंपैरिजन। तो आई ऑलवेज टेल माय क्लाइंट्स कि यू गो थ्रू एडवाइजर्स, इन्वेस्ट थ्रू एडवाइजर्स, बिलीव ऑन एडवाइजरी। So this is from my side. We will share the presentation with all. And for any query, you can contact our wealth team, FS team, both. Thank you from my side. If you want to, if you have any query, then you can go to this chat box. Yes. So now floor is open Even for the Ravi is questions. also there. कोई stock query है तो Ravi भी ले, Ravi जो हमारा research है वो भी query resolve कर सकते हैं. Yes. Thank you, Ankush bhai, first of all, for a very good presentation. Now the floor is open for the questions. Thank you all participants for coming here. So now let's see if there are any questions, you can definitely ask. So I have let's say gone through some of the questions. So let me ask to Ravi. Ravi, question certain participants ke through. Yes, So I have noted all questions and queries. okay, great. Till now. So you can start answering the same. Yeah. Yes, one by one and थोड़ा क्विकली करेंगे क्योंकि queries ज्यादा है and further I expect further queries. Yes, so yes. पहले अनिल जी से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन था इंफ्राटेल का आउटलुक ऑफ इंफ्राटेल। आई थिंक कि पॉजिटिव, जो अभी डेटा इज न्यू ऑयल, डेटा इज न्यू गोल्ड, तो इस हिसाब से लग रहा है कि जो कंजम्पशन है रिसेंटली डेटा का, तो अकॉर्डिंग टू दैट इट्स अ गुड स्टॉक एंड सेक्टर। भारती एयरटेल, भारती इंफ्राटेल बोथ विल वर्क बेटर। आई थिंक कि पोर्टफोलियो में ये आपका इन्वेस्टमेंट है, इसमें होल्ड करें। 170 के करीब चल रहा है प्राइस, ऑलरेडी हायर लेवल से 100 रुपए से ज्यादा करेक्शन आ चुका है, तो मेरे हिसाब से स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। तुषार जी का क्वेश्चन था बैंकिंग सेक्टर पे, एंड कोटक जी का क्वेश्चन था पोस्ट जो लॉकडाउन है एनपीए की सिचुएशन क्या रहेगी, दोनों हम साथ में डिस्कस करेंगे। बैंकिंग सेक्टर का आउटलुक रिसेंटली 2 से 3 अभी जो रिजल्ट आए उसमें पर्टिकुलर एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक ने अपने नंबर पोस्ट किए हैं। अकॉर्डिंग टू दैट इंडोसिंड बैंक ने अपने नंबर पोस्ट किया। अकॉर्डिंग टू दैट प्राइवेट बैंक्स में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, थोड़ा लॉस एक्सपेक्टेड है पीएसयू बैंक में, क्योंकि पीएसयू बैंक में आई थिंक कि जो 3 मंथ का मॉनिटरिंग पीरियड है उसमें ज्यादा अलोकेशन देना पड़ेगा। उसमें आई थिंक पीएसयू बैंक में 30 to 40% ऑफ लोन्स ने ये डिमांड की है, तो अगर इतना बड़ा प्रोविजन आया तो एक क्वार्टर में हेवी लॉस पोस्ट होगा। आई थिंक कि उसमें बैंकिंग सेक्टर में दिग्गज जिसके नंबर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, जिसके फंडामेंटल्स ऑलरेडी बेटर है, उसमें पर्टिकुलर एचडीएफसी बैंक एंड नेक्स्ट सैटरडे आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट है, उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक। ये 2 बैंक मुझे पसंद है। पोस्ट लॉकडाउन जो एनपीए की सिचुएशन है, ये क्वार्टर की थोड़ी खराब रह सकती है। हालांकि अगर मई में ही मई एंड या 1 जून तक अगर लॉकडाउन ओपन हो जाता है, कोरोना का कर्व अगर फ्लैटन या डिक्लाइनिंग मोड में जाता है, तो बैंकिंग में इतना एनपीए रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं रहेगा। 3 महीने का थोड़ा वन ऑफ आई एक्सपेक्टेशन है मुझे, बट यस ये सस्टेनेबल नहीं होगा, क्योंकि अगर जो लॉकडाउन के बाद 70-80% कैपेसिटी से बिजनेसेस चालू हो गए, तो मेरे हिसाब से रिकवरी 1 से 2 क्वार्टर में आ जाएगी। बट नियर जो लोअर लेवल से मार्केट जो ऊपर आया है, करीबन 7500 का लो बना के अभी लास्ट क्लोज 98,9850, तो आई थिंक ये काफी बड़ी रिकवरी आ चुकी है। जिसको बैंकिंग सेक्टर में पर्टिकुलर इन्वेस्ट करना है उसको सारा पैसा अभी नहीं लगाना है। थोड़ी डिप की मींस एडवाइस है कि यहाँ से अगर 10-15% डिप आता है तो ही ये सेक्टर में इन्वेस्ट करें। हालांकि अभी के रेट पे इन्वेस्ट करना है तो आई वुड प्रेफर एचडीएफसी बैंक। थर्ड, पाविन जी का क्वेश्चन था कि जो मैं मैनेज करता उसके अलावा
सारे जो पोर्टफोलियोज के स्टॉक भेजे फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। एंड अभी जो सारे पोर्टफोलियो से मॉडल फंड्स ये कोर जी ही मैनेज कर रहा है, मैं मैनेज कर रहा हूँ। तो आई थिंक ये जो सारे स्टॉक है उसमें जो हमारे टॉप स्टॉक्स है ऑलरेडी सर ने डिस्कस कर लिए है। तो वो जो प्रेजेंटेशन आपको भेजे वही स्टॉक है, वो हमारे सारे पोर्टफोलियो में स्टॉक ही है। तो वो प्रेजेंटेशन में आपको स्टॉक का लिस्ट भी मिल जाएगा। हरेन जी का क्वेश्चन था कि इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। मेजरली जब आप एसआईपी करते हो, पर्टिकुलर एसआईपी के रिलेटेड क्वेश्चन था। एसआईपी में मैं जब 7700 पे भी लोग पूछते थे या 10,000 पे भी पूछते थे या 12,000 पे भी पूछते थे। म्यूचुअल फंड में एसआईपी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट डिक्लाइन होता है, एसआईपी जो कर रहा है वो लोग को खुश होना चाहिए क्योंकि उसको लोअर रेट पे मिल रहा है। जब हम 12,200 पे इन्वेस्ट कर रहे थे तब हमें कोई फियर नहीं था। जब 7,500 7,700 पे लोग पूछते हैं कि एसआईपी हमें कंटिन्यू करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, लार्ज कैप सारे एसआईपी कंटिन्यू करनी चाहिए। जो स्मॉल कैप या हायर रिस्क के रिलेटेड एसआईपी है उसमें से थोड़ा आपका जो शिफ्ट है वो लार्ज कैप एंड ब्लू चिप स्टॉक की जो एसआईपी है म्यूचुअल फंड है उस पे होना चाहिए। क्योंकि जो ये पोस्ट लॉकडाउन है, सर्वाइवल का जब क्वेश्चन आएगा, अगर ये लॉकडाउन एक्सटेंड होता है, अगर सिचुएशन यहाँ से थोड़ी सीवियर होती है, तो मेरे हिसाब से जो भी बिग नेम है वही सर्वाइवल आएगा। जिसके पास कैश है, जो लिवरेज नहीं कर रहे हैं, जिसके पास ज्यादा कैपेसिटी है, जिसके पास ज्यादा रिसोर्सेस है, वो सेक्टर एंड स्टॉक्स अच्छा कर पाएंगे। तो आई थिंक लार्ज कैप स्टॉक्स है उसको प्रेफर करना चाहिए, रिस्क थोड़ा कम लेते हुए। भरत जी का क्वेश्चन था कि एचडीएफसी में चाइना ने इन्वेस्ट किया। एचडीएफसी बैंक में नहीं किया है, एचडीएफसी लिमिटेड ने बैंक ऑफ चाइना ने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है। तो आई थिंक कि जो गवर्नमेंट ने अभी रिस्ट्रिक्शन डाले, गवर्नमेंट ने जो सर्कुलर दिया है, इस हिसाब से अभी बैंक ऑफ चाइना डायरेक्ट रूट से एचडीएफसी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा। अगर स्टॉक की फंडामेंटल एंड क्वालिटी की बात करें तो बेटर क्वालिटी है। जो मैनेजमेंट ने कॉन्फ्रेंस पे लास्ट वीक दी थी कि ओनली 6 to 7% होम लोन्स ने ही अप्लाई किया है ये मोनिटोरियम के लिए, तो काफी बेटर सिचुएशन एचडीएफसी लिमिटेड की है। तो मीन्स जो अगर आप फाइनेंशियल्स की बात करें एंड हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो एचडीएफसी इज अ बेटर स्टॉक। ज्यादा घबराने की बात नहीं है। बैंक ऑफ चाइना इन्वेस्ट कर रहे हैं, मीन्स कि कोई भी इसको प्रोबेबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी लगी तभी उसने इन्वेस्ट किया। साथ में पावन जी का क्वेश्चन था टाटा कॉफी। टाटा कॉफी को इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, कंजम्पशन एफएमसीजी एंड बीवरेज इसका चल ही रहा है। रिसेंट देखे तो मैनेजमेंट ने भी उसमें स्टेक लिया था। तो आई थिंक कि टाटा कॉफी 78 के करीब क्लोज हुआ था, शायद ये पैनिक मोड में 68 70 तक जाए, बट मुझे लग रहा है कि ये साल में अगर पोस्ट लॉकडाउन सिचुएशन नॉर्मलाइज होती है ये 120 तक ये स्टॉक जा सकता है। आप अगर पोर्टफोलियो स्टॉक है तो होल्ड करें, ट्रेडिंग के लिए अगर लिया है तो 70 के करीब स्टॉप लॉस लगा ले। दीपक जी का क्वेश्चन था डेट फंड के लिए फ्रैंकलिन के इश्यू के बाद कोई घबराना नहीं है, क्योंकि फ्रैंकलिन में अभी तक जो हम रिसर्च एंड अभी तक जो हमने एनालाइज किया है, फ्रैंकलिन में थोड़ा लिवरेज ज्यादा था। फ्रैंकलिन में जो डेट उसका क्वालिटी था उसमें ज्यादातर लिवरेज पोजीशन थी, क्योंकि फ्रैंकलिन हाईएस्ट रिटर्न देता था डेट फंड में। तो आई थिंक कि जो अदर गुड क्वालिटी डेट फंड है उसमें इतना ज्यादा फियर नहीं है। मालीवाल जी का क्वेश्चन था रिलेटेड टू ऑल, उन्होंने सीपीएस सीटीएफ एंड सारे जो पीएसयू स्टॉक के रिगार्डिंग क्वेश्चन किया है। उसमें कोल इंडिया, साथ में नेशनल एल्यूमिनियम एंड एनएमडीसी एंड साथ में जेएसडब्ल्यू एनर्जी, ये 4 स्टॉक है मुझे पसंद है। रेस्ट ऑफ स्टॉक्स है उसमें एग्जिट करना बेटर स्ट्रेटेजी हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो फिनेंशियल कंडीशन है थोड़ा इस साइड डेफिसिट बढ़ सकता है। तो जो पीएसयू कंपनी से जो गवर्नमेंट के सपोर्ट एंड पैकेज पे एंड सब्सिडी पे चलती है वहां थोड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो आई थिंक ये 3 स्टॉक रखे, बाकी पोर्टफोलियो से एग्जिट कर ले। सीपीएससी ईटीएफ है वो पैसिव फंड है, 5 साल के लिए अगर रुक सकते हैं तो ही इसमें पैसा लगा के रखे। अदरवाइज आई वुड एडवाइज कि उसमें से एग्जिट करके प्राइवेटली मैनेज स्टॉक्स एंड फंड एंड हमारा जो फंड है, हमारे मॉडल फंड्स है, हमारे पीएमएस है, हमारे म्यूचुअल फंड है, उसमें आप अपना पैसा शिफ्ट कर ले, वो बेटर रिटर्न देगा। सीपीएससी ईटीएफ प्योरली ये पैसिव फंड है, 5 साल के लिए ही इसका जो ऑल ओवर ग्राफ प्रिपेयर किया है। तो आई थिंक कि आपको वो अवॉइड करना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है आराम। One question was there on the Reliance. Okay, what is the view on Reliance? Yes.
हाँ, रिलायंस में जो रिजल्ट आया है उसमें कोई खराब सिचुएशन नहीं लग रहे, इन लाइन विथ एक्सपेक्टेशन था। एंड क्रूड के जो इन्वेंट्री लॉस है वो उसमें दिखा था, क्योंकि क्रूड के प्राइसेस एक क्वार्टर में देखे तो करीबन करीबन 60% गिरे। तो इस हिसाब से रिलायंस ने 4,267 करोड़ का एक वन टाइम लॉस लिया था। जो प्रॉफिट है इस हिसाब से कम है, अदरवाइज प्रॉफिट में कोई इतनी कमजोरी नहीं है। प्रॉब्लम रिलायंस के रिजल्ट में कुछ नहीं, मेजर एक ही प्रॉब्लम है, वो है कि रिलायंस ये मंथ में ऑलरेडी 35% रिटर्न दे चुका है। तो आई थिंक इट्स सम प्रॉफिट बुकिंग एडवाइजेबल है। एज वेल एज देखे तो जियो में आरपू है, उसमें थोड़ा 132 to 135 की एक्सपेक्टेशन थी, उसके सामने 131 था, बट सामने जो कंज्यूमर बेस बढ़ा इस हिसाब से आरपू का इतना ज्यादा नेगेटिव नहीं हुआ। रिलायंस के जीआरएम, अगर सिंगापुर जीआरएम नेगेटिव में, उसके सामने रिलायंस ने जो कैपेक्स किया था लास्ट 5 ईयर से, उसका डेफिनेटली उसको बेनिफिट मिला है। वर्ल्ड में हाईएस्ट जीआरएम ये क्वार्टर में रिलायंस ने पोस्ट की है। तो आई थिंक कि शॉर्ट टर्म शायद आपको मंडे या नेक्स्ट वीक में थोड़ा 8 to 10% का करेक्शन रिलायंस में देखने को मिले एज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग। साथ में जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी कि जो उसका प्राइस रहेगा जो फर्दर इश्यू का, वो अराउंड अराउंड रहेगा 1000 बिलो, तो वो भी 1200 के ऊपर आया है। तो आई थिंक कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग नेक्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड है, बट ऑल ओवर जो भी डिप आए मेरे हिसाब से रिलायंस के लिए वो बाइंग अपॉर्चुनिटी है। रिलायंस ने जो एग्रेसिव टारगेट सेट किया है टू रिड्यूस डेट, रिलायंस ने बोला है कि मैनेजमेंट ने कि दिसंबर तक रिलायंस डेट फ्री कंपनी होगी। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट कॉर्पोरेट प्राइवेट सेक्टर में अगर डेट फ्री होता है तो इससे ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है। नेक्स्ट वीक में डिप का वेट करें, ऑन इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हो। ऑटो सेक्टर में आउटलुक नेगेटिव है, अभी यहाँ से और कमजोरी देखने को मिल, पर्टिकुलर जो लिवरेज कंपनियां है, ऑटो कंपनी में ज्यादातर कंपनी ने लिवरेज लिया है, मारुति एक्सेप्शनल केस है, बट ज्यादातर कंपनी है वो लिवरेज है। तो इस हिसाब से वो बर्डन है। मार्च में 30-40% सेल्स में ड्रॉप था, अप्रैल में जीरो सेल्स है। तो आई थिंक ये एक नेगेटिव फैक्टर ऑटो सेक्टर के लिए है। तो शॉर्ट टर्म में ऑटो सेक्टर पे ध्यान ना दे। अभी क्यों बढ़ा है प्राइसेस, क्योंकि सारी ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी कंपनी न्यूज दे रही है कि वो अपने प्लान को रिज्यूम कर रहे हैं। इसमें एक ध्यान रखना है, ऑल ओवर में एडवाइस देता हूँ कि जो भी कंपनी आज न्यूज देती है कि ये कंपनी ने आज अपना प्लान चालू किया, रिजम्पशन किया, उसका इम्पैक्ट लिमिटेड रहेगा, 1 डे 2 डे 3 डे, उससे ज्यादा उसको ट्रेडिंग के लिए यूज करें, इन्वेस्टमेंट के लिए इसको यूज ना करें। निफ्टी 7215 दिखा सकता है, मेरे हिसाब से ये थोड़ा दूर का लेवल है। हाँ, कंडीशन ऐसी है कि 10,000 के ऊपर सस्टेन होना, ये लेवल पे, ये अर्निंग पे, ये सिचुएशन पे मुझे डिफिकल्ट लग रहा है। अगर कोई भी उछाल मिले शायद आपको मीन्स हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो सुबह कॉन्फ्रेंस कॉल किया था और लास्ट वीक में जब किया था तभी मैंने बोला था कि 9800 9900 ये एक लेवल है जिस पे आपको मुनाफा वसूली कर लेनी है। क्यों? क्योंकि ये मीन्स के पोस्ट कोविड सिचुएशन एंड अनसर्टनिटीज एंड जो लॉकडाउन फिर से एक्सटेंड हुआ है 17 तक, ग्लोबल मार्केट का जो सिनारियो उसमें भी थोड़ा हमने वीकेंड में थोड़ा गिरावट देखा है। तो आई थिंक कि निफ्टी नीचे रहेगी, बट मेरा एक्सपेक्टेशन है कि इम्पोर्टेंट लेवल 8500 का है। अगर वो ब्रीच होता है तो 6500 तक भी निफ्टी फिसल सकता है, बट अभी 8500 तक का लेवल मीन्स ये कंडीशन जो अभी है, अभी जो फैक्टर्स है, मेरे हिसाब से 8500 वुड बी अ बॉटम, वहां तक एक बार निफ्टी दिखा सकता है। Nifty का P is a 21. It's a right value. No, it's not right value to invest at 21 P at current fundamentals. क्रूड का प्राइस का पहले मैं बात कर लूं। क्रूड के प्राइस का कोई भी पॉजिटिव इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी को अभी नहीं है, क्योंकि कंजम्पशन जीरो है। मीन्स ऑल ओवर देखे तो 80% जो आईओसी के चेयरमैन का बयान था कि 80% कंजम्पशन क्रूड का कम हुआ है। तो अगर क्रूड का कंजम्पशन कम है, मीन्स के पेट्रोल डीजल का कंजम्पशन कम है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टॉप है, तो आई थिंक कि तब क्रूड के प्राइसेस लोअर रहना हमारे लिए कोई पॉजिटिव चीज नहीं है। अगर ये क्वार्टर में प्राइसेस 30 बिलो ब्रेंट सस्टेन होता है तो पॉजिटिव है। सेकंड कि रेमिटेंस जो आता है हमारे यहाँ गल्फ नेशन से, जो क्रूड ऑयल जो प्रोड्यूसर्स है वहां पे जो हमारे इंडियंस काम करते हैं उसके और से ज्यादा रेमिटेंस आता है। हम जो जिससे क्रूड बाय करते हैं वो डायरेक्ट एज ए पार्ट ऑफ एफडीआई इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसका थोड़ा मुझे लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट कम होगा। तो क्रूड हमारा लिए $30 to $50 है, वो हमारे लिए बेटर सिचुएशन है। तो क्रूड के प्राइसेस की कोई इम्पैक्ट है अभी पॉजिटिव नहीं है।
हाँ, अगर 30 से 50 के बिटवीन रहा ये क्वार्टर में तो मेरे हिसाब से इंडिया के लिए पॉजिटिव सिनेरियो रहेगा। निफ्टी में थोड़ा पी करेक्ट करने दीजिए एंड ज्यादातर 15-16 पी जो आपने पूछा है अब वहां पे नहीं बट 18 के पी से एक बार इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना चाहिए। So I have shared certain links. हम डेली मॉर्निंग को कॉन्फ्रेंस कॉल हमारा रहता है. रवि इज कंडक्टिंग दिस कॉन्फ्रेंस कॉल. तो ऑल द पार्टिसिपेंट आप लोग ज्वाइन कर सकते हो ये कॉन्फ्रेंस कॉल को. तो आपको डेली की क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, ये लिंक अभी मैंने जो चैट में शेयर की है रिसेंट लिंक, वो हमारा डेली कॉन्फ्रेंस का लिंक है. तो आप वो लिंक से डेली सेम लिंक से ही कनेक्ट हो सकते हो. सो उससे आपको क्या स्ट्रेटेजी बनाना है, आज का क्या आउटलुक है पर्टिकुलर ट्रेडिंग डे का, वो आपको मिल सकता है. सो दिस इज वन ऑफ द यूनिक थिंग विच यू कैन यूज फ्रॉम आवर रिसर्च टीम. गोल्ड सिल्वर आउटलुक के लिए मैंने जस्ट हमारा जो रिसेंट प्रीशियस मेटल का वेबिनार था उसका लिंक शेयर किया है. सो आप वो रिफर कर सकते हो और डिटेल में बाद में 1-to-1 रवि इज ऑल्सो देयर टू हेल्प यू फॉर दैट. Ravi, if you can share in let's say 1 or 2 line view of gold and silver. गोल्ड एंड सिल्वर में पर्टिकुलर मुझे लग रहा है कि दोनों का आउटलुक पॉजिटिव है ये क्योंकि ज्यादातर देखे तो इन्वेस्टमेंट डिमांड काफी अच्छी है गोल्ड एंड सिल्वर की. इस हिसाब से मेरा ये मानना है कि गोल्ड एंड सिल्वर में थोड़ा बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी. कल जो ग्लोबल फंड मैनेजर्स के कंबाइंड डेटा थे उसमें भी एक क्वार्टर में गोल्ड में जो फंड मैनेजर से अपना इन्वेस्टमेंट किया है जिसने डाइवर्सिफाइड किया है वो 20% के करीब है पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन. तो ये डिमांड मुझे लग रहा है कि गोल्ड सिल्वर में कंटिन्यू रहेगी. प्री एक अच्छी स्ट्रेटेजी है कि प्री लॉकडाउन मीन्स कि अभी जब डाउन टर्म सिनारियो है तब तक गोल्ड को प्रायोरिटी दे. जैसे लॉकडाउन ओपन होता है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज अक्रॉस द ग्लोब रिज्यूम होती है तो सिल्वर को दे. तो ये कॉम्बिनेशन से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको प्रायोरिटी ये लेवल पे सिल्वर को देनी चाहिए क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो हिस्टोरिकल हाई के लेवल पे चल रहा है. अब 100 कभी भी सस्टेन नहीं हुआ. तो आई थिंक जैसे ही ये सिचुएशन थोड़ी नॉर्मलाइज होना स्टार्ट होगी सिल्वर विल आउट परफॉर्म. मेरा जो ये साल का टारगेट है सिल्वर का वो है 49,500. अभी यहाँ से मीन्स कि वहां से देखे तो करीबन करीबन 9,000 पॉइंट का गैप है. तो कोई भी टिप मिलते हैं 40,000 के करीब सिल्वर मिलता है. 38,500 का लेवल ध्यान में रख के लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर लो. 50,000 तक सिल्वर जा सकता है. गोल्ड विल मुझे लग रहा है कि गोल्ड की जो रेंज है ब्रॉडर वो है 43,200 से 48,000. यही रेंज में ये पूरा साल रहेगा. बट गोल्ड में एंड सिल्वर में ये साल एटलीस्ट जब तक इकोनॉमिक कंसर्न्स की बात चल रही है बुलियन विल आउट परफॉर्म. Thank you, Ravi. You all can also join our Telegram channel wherein ये हर एक न्यूज का अपडेशन रहता है. अभी आप ये वेबिनार के अंदर ऑफर सेक्शंस में जाओगे तो यू विल फाइंड द लिंक ऑफ आवर टेलीग्राम चैनल. तो वो भी आप ज्वाइन करके डेली कनेक्ट हो सकते हो हमारे रिसर्च के साथ. हमारा जो भी न्यूज है व्यूज है और प्रोडक्ट्स है उसका अपडेट रेगुलरली टेलीग्राम चैनल में आता है. तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दैट. यस सर. And would also like to share one interesting update based on the poll जो अभी हमने किया था during this webinar. So more than 70 people are saying कि अभी आगे के टाइम पे equity would be the one of the best performing asset class followed by bullions यानी gold and silver. So जो ओवरऑल हमारा क्रक्स था जो अंकुश जी ने पूरा ब्रीफ सॉरी डिटेल में बताया कि आगे जाके जो मार्केट लग रहा है काफी यानी उतार चढ़ाव तो कोई भी मार्केट का पार्ट है बट ओवरऑल फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इट इज वन ऑफ द बेस्ट एसेट क्लास. एंड उसके अंदर जो मेन रिक्वायरमेंट है दैट इज अ एडवाइजर कि आप लेट्स से यू कैन बी अ एक्सपर्ट ऑफ योर ओन बिजनेस और ओन सर्विस एरिया वेयर यू आर वर्किंग. So whenever we are putting our hard earned money for the investment, we always take a help of the advisors. We should not try to manage all the things by ourselves. So we have very strong advisory team. You can take their advice and the benefit of their experience at any given point of time. And the same advisory team is backed by our strong research team. So it's a very proper synergy, and for all the asset class, we have the platform that is for equity, commodity, currency, and all, and even real estate.
So yes, you can utilize that our platform for all your investment needs. Once again, thank you all for joining. We'll be arranging another webinar on the trading strategies, wherein we'll be giving you different technical and fundamental trading strategies outlook, and what are the different things which you can utilize for your